an hour for share trading knowledge, and half an hour for our know your book balance sheet reading. First, reading in English by Anjali Deshpande, madam. She is the founder of Write Plus, and she also content writer, and she also our book editor. Uh, Thank you, Anjali, madam. You can start the reading in English. Thank you, HR sir. Uh, Last time we saw some components of trading and profit and loss account. Up to salary, we had seen that components. We start with the property tax today. Property tax, there are two types of property tax. One is personal property tax. This is the property tax on apartments and must be deducted from rent income. Rent income is chargeable under the head income from house property. Next is business property tax. You can claim this property tax as business expense if such property is used for business purpose. Bifurcate the property tax properly as prepaid and current year expenses of the business property. Next item is sales promotion expenses. Sales promotion expenses are the expenses that are incurred for business expansion. These are treated as an indirect expense and include the following and similar expenses: hotel expenses for your customers, exhibition expenses, advertising expenses, and any other such expenses that indirectly contribute to your business expansion. Next item is staff welfare expenses. These are the expenses that are incurred for the well-being of the staff and include snacks, tea, uniform expenses, and any other expenses on festivals made for the staff, for your staff. Staff welfare expenses should be reasonable and neither excessive nor too low. Monitor and take action to maintain proper control for such expenses. For example, instead of buying tea from outside hotel, one can maintain an in-house canteen or a small pantry or keep tea and coffee vending machines. Next are telephone expenses. Telephone expenses are part of the indirect expenses. If telephone expenses are paid by the company to its employees, then ensure that this facility is properly used by the employee. For example, in the year 2009 and 10, when market was in recession, the human resources of a well-known software company saved rupees 12,000 per month, which is rupees 1,44,000 per annum. The company was providing the telephone allowance to its employees, and the employees were subscribing to the caller ringtone. At that time, caller tune cost was rupees 30 per month for a single subscriber. As there were 400 employees in the company, the total cost was a huge 12,000 rupees per month. This came to the notice of the HR when she called an employee. She took prompt action and the company discontinued the caller tune subscription for its employees, thus saving 1,44,000 rupees per annum. So you can save on telephone expenses like this. So next is transportation charges. Transportation charges related to the purchase of machinery and other fixed assets are debited to the respective fixed assets and machinery account and not as a revenue expense. Did you know this about the transportation charges? Transportation charges are liable for reverse charge mechanism if a transporter gives the consignment note. If the consignment note is not given by the transporter, reverse charge mechanism will not be applicable. Transportation charges are liable for TDS. If a transport owner has more than 10 vehicles, then the company must deduct TDS on such expense. Else, the company must take declaration from the transporter that he doesn't possess more than 10 vehicles in the concerned year.
Many transporters do not provide proper bill and the company pays in cash. This can create problems in case of income tax scrutiny. Hence, the company should either make payment through bank or take proper bill containing name, mobile number, date, inch number, number of trip details, vehicle number, seal and stamp on the bill of such transporter. Next is vehicle insurance. Vehicle insurance is treated as part of the indirect expenses. Since the vehicle is used by the owner for personal use also, in this case, insurance expenses are not 100% treated as business expense. Income tax department may disallow some portion of expenses for personal use of vehicle on ad hoc basis. Bifurcate the prepaid vehicle insurance expenses and current year vehicle insurance expenses. Water expenses. Water expenses are treated as indirect expenses if the water expense is related to business purpose or for employees' consumption. Compare the cost of purchasing filtered water from outside with the cost of installing a water filter in the company. Choose the cost optimizing solution. Interest and penalty on TDS. Interest and penalty on TDS is not allowed as an expense. Rather, it is treated as an income. That is why we advise that always pay TDS on time. If you do not file TDS return in time, the penalty of 200 rupees per day will be levied by the income tax department. If you pay TDS after 1 year of the due date, you may be prosecuted for default. Vehicle loan interest. Interest on vehicle loan, the EMI, margin money, interest paid, interest be paid through the company account. If you want to claim the expenses and depreciation of the vehicle as a business expense. Site expenses. Site expenses are given to workers who work on the site. Scrutinize and check the bills submitted by the on-site workers, as there is little control on the site and these bills can be manipulated. Next is donation. Donation is not an expense and one can claim deduction under section 80G of the Income Tax Act if it is debited in profit and loss account. It will be added back to the income while computing the income tax. Donation must be made through check or RTGS or NEFT to claim deduction under section 80G. Ensure that the donation receipt contains PAN number of the donee and registration number of the trust, which is registered under section 80G. Foreign exchange difference. The foreign exchange gain or loss must be shown separately in the profit and loss account. The exchange gain or loss happens due to fluctuation in the currency rates of the country. So this is where we end, and a small item of interest in the box. Trading account educates us about our annual turnover and gross profit of the business, while profit and loss account educates us about the net profit in our business. With this, we end the first chapter of this book, Know Your Balance Sheet, authored by C.A. Hanumantrao Chaudhary. Over to you, sir. Yes, thank you, madam. Good evening and welcome all. I am C.A. Hanumantrao Chaudhary, author of Know Your Balance Sheet book. प्रॉपर्टी टैक्स में दो टाइप का प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा होता है वो बिजनेस प्रॉपर्टी टैक्स। पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जो रहता है, जैसे आपको अभी फ्लैट में रेंट के लिए है, आपको एवरी ईयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स का पे करना पड़ता है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। बहुत सारे लोगों का घर एक से ज़्यादा रहते हैं, कुछ घर उन्होंने रेंट के लिए दिया रहता है, उस टाइम पे आपको आपका जो भी सीए है, कंसल्टेंट है, उनको आप रेंट
आपका जो इनकम है उसके साथ में आपको कॉर्पोरेशन टैक्स जो पे किया हुआ है वो भी डिटेल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आपका रेंट इनकम से डिडक्शंस मिलता है। दूसरा जो टैक्स है वो बिजनेस प्रॉपर्टी टैक्स है। जैसे आपका फैक्ट्री शेड है, आपका ऑफिस है, आपका जो भी प्रॉपर्टी टैक्स आप पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंसेस बोल के क्लेम आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आपका बिजनेस का रिलेटेड होता है, उसके लिए आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में जैसे हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कशन किया हुआ है, जैसे इंश्योरेंस को हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस में बाइफरकेशन करते हैं, वैसे प्रॉपर्टी टैक्स में भी आपको बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है। कैसे अभी वो भी 1 साल के लिए पे हुआ रहता है, तो अकॉर्डिंग टू पीरियड यू मेक द प्रॉपर बाइफरकेशन। नेक्स्ट जो है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो है, जो भी आपका बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो भी आपने खर्चा करता है दैट इज ट्रीटेड एज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल होटल एक्सपेंसेस फॉर योर कस्टमर, आप कुछ कस्टमर के लिए होटल के लिए लेके जाके कुछ भी आप खाना पीना करेंगे वो दैट इज सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, जैसे आपका मटेरियल आप किधर जाके एग्जीबिशन के लिए आप कुछ एक्सपेंसेस खर्चा करेंगे दैट इज आल्सो योर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जो भी एडवर्टाइजिंग आप बिजनेस के लिए आप खर्चा करेंगे दैट इज आल्सो योर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है वो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है ये स्टाफ के लिए खर्चा किया रहता है, जैसे स्टाफ का स्नैक्स हो, टी, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस, जो भी आपका कुछ फेस्टिवल है, दीपावली के लिए आप कुछ खर्चा करेंगे, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर द स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में भी आपको मेंटेन, हर एक एक्सपेंसेस में आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसके साथ में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सपोज आप बाहर का कैंटीन से कुछ अपने एवरीडे टी यू आर आस्किंग फॉर टीज एंड वड़ा पाव, जो भी है आप बाहर से मंगा के ले रहे, होटल से कैंटीन से आप ले रहे, तो आपको ये भी कंपैरिजन करना है। इसको इन हाउस करने से आपको कुछ फायदा होगा। जैसे आपको बाहर 10 रुपीज़ में वड़ा पाव मिल रहे हैं, तो आप इन हाउस किए तो उसको सपोज आप 5 रुपीज़ में आप बना सकते हैं, तो आप उसको, आपके पास फैसिलिटी रहा तो आप उसका कर सकते हैं। छोटा कंपनी में थोड़ा डिफिकल्ट है करने के लिए, बट बड़े कंपनी इन हाउस में स्पेस रहते हैं बट दे आर नॉट थिंकिंग, हम लोग सोचता नहीं है, बट आपके पास ऐसी सब फैसिलिटी है, आप उसको इन हाउस कर सकते हैं, तो इसमें से भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बच सकते हैं। जैसे स्नैक एक्सपेंसेस है, टी एक्सपेंसेस है, आप सभी इन हाउस करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे बड़े कंपनी में टेलीफोन अलाउंसेस, सैलरी के साथ में कंपनी टेलीफोन अलाउंसेस भी देता है। जैसे 2009-10 में सबको पता है रिसेशन कैसे था। जैसे जस्ट मैं 3 इयर्स मेरा प्रैक्टिस चालू करके 3-4 साल हुआ था, मैं ग्रोसरी विजिट जब जाता था तो उधर बिजनेसमैन लोगों को जिसको खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, उस टाइम पे 2009-10 में दे आर प्लेइंग द फुटबॉल। इतना बड़ा रिसेशन 9-10 में आया था, सब कंपनी के लिए चैलेंज था। जैसे अभी कोविड में चैलेंज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसे 9-10 में बहुत सारे रिसेशन के लिए सब बिजनेसमैन को एक चैलेंज था। उस टाइम में बहुत सारे कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को एक ये दिया था, उनको एक चैलेंज दिया था, आप कैसे कंपनी को कॉस्ट सेव करके आप कंपनी को बचा सकते हैं। इसमें से हर एक एम्प्लॉय को एक रोल दिया था। मैं एक कंपनी का इंटरनल ऑडिटर था, मेरे को भी एक रोल दिया था, आप कैसे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे उनको गाइडेंस दिया कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। उसमें से एक एग्जांपल्स मैं बताना चाहता हूँ। एक एचआर डिपार्टमेंट ने उनका एम्प्लॉय को फ़ोन लगाई उन्होंने, तो उस कंपनी का जो टेलीफोन अलाउंस देता था तो अराउंड 400 एम्प्लॉय के लिए टेलीफोन अलाउंस था। उस टाइम में डायलर टोन तो बहुत सबके लिए उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत पैशन था, बट उसका कॉस्ट मिनिमम पर मंथ 30 रुपीज़ था। उनको एक टास्क दिया था, आज शाम तक आपको एनी कंडीशन आपको कैसे कंपनी का आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, आपको हर एक एम्प्लॉय को आपको उसका एक आइडिया देना है। तो जैसे एचआर डिपार्टमेंट का एक मैडम, उन्होंने फ़ोन लगाया एम्प्लॉय को, उनको समझ में आ गया, उन्होंने डायलर टोन एक्टिवेट किया था। उसी टाइम में उनको ध्यान में आ गया, सपोज हम लोग
400 एम्प्लॉय का ऑलमोस्ट लोग 400 में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग डायरेक्ट उस टाइप पे एक्टिवेशन था, उस सबको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अराउंड 12,000 पर मंथ उन्होंने कंपनी के लिए सेव करके रखा। ऐसे छोटे छोटे चीज अपने जैसे एम्प्लॉय का कॉस्ट रहते हैं, कंपनी का कॉस्ट रहते हैं, परचेज कॉस्ट रहते हैं, हर एक कॉस्ट के बारे में, इसमें पर्टिकुलरली कौन सा एम्प्लॉय ऐसे कुछ कॉस्ट नहीं है, हर एक कॉस्ट को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रिडक्शन करके आपका कंपनी का कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं। सी सेव्ड अराउंड 1,44,000 पर एनम। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी बहुत सारे बड़े इसमें बहुत चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा आपको बिल नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन का रहते हैं। तो एज ए आपका ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर आपको क्या उसमें देखना है। सपोज आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका मशीनरी के लिए आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस है, प्रोसेसिंग चार्जेस रिलेटिंग टू टर्म लोन फॉर मशीनरी, वो आपको मशीनरी में ऐड करना है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी रिलेटेड टू मशीनरी है आपको मशीनरी में ऐड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं करते तो उसको डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंसेस में डाला हुआ रहते हैं। सो दैट वी आर एडवाइज आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को डेबिट ना करते हुए उसको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना बहुत जरूरी है। सपोज वो मशीनरी के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन, सपोज आपका मशीनरी कुछ मुंबई से लेके आना है, उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है वो ऑल आर द पार्ट ऑफ द फिक्स दैट मशीनरी कॉस्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं होता है। मशीनरी का पूरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्ट। ये सबको ध्यान देना है, क्योंकि अकाउंटिंग जब आप काम करेंगे तो आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है। आप सपोज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बाइफर्केशन करना आपको समझ में नहीं आता है तो आपको अकाउंट परफेक्ट अकाउंटेंट बनना और परफेक्ट अकाउंटिंग करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए रिवर्स चार्ज भी अप्लीकेबल होता है। अभी बहुत सारे लोगों को जीएसटी जब आ गए तो रिवर्स चार्जेस के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अभी भी बहुत सारे लोगों को, अकाउंटेंट लोगों को क्लैरिटी नहीं होता है रिवर्स चार्ज होता है क्या। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हर एक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर रिवर्स चार्जेस लगा देते, नहीं तो कुछ लोग रिवर्स चार्ज लगाता भी नहीं है। आपका ये देखना है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका बिल आ जाएगा तो आपको एज ए अकाउंटेंट, एज ए ओनर आपको ये देखना है तो जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने आपको कंसाइनमेंट नोट दिया है क्या। ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट ये होता है जैसे वो आप ट्रांसपोर्टर को कुछ मटेरियल दिया उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पूरा रीच होने तक, उसको जगह पे पूरा रीच करने तक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इन बिटवीन में कुछ मटेरियल को डैमेज हुआ, कुछ हुआ, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर। उसके लिए उन्होंने आपको एक कंसाइनमेंट नोट दिया हुआ रहते हैं। इस केस में कंपलसरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल होता है। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अपना भोसरी में हम लोग बहुत सारे देखते हैं तो छोटा छोटा टमटम वाला रहते हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए भी आरसीएम पे करते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए उनका केस पे आपको रिवर्स चार्ज भरना जरूरी नहीं है। वो कैसे, सिर्फ वो मटेरियल आपका कुछ 400-500 रुपये दे देंगे, वो मटेरियल डिलीवरी करते हैं, बट वो मटेरियल इन बिटवीन में कुछ तो हुआ तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए ही इज नॉट लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर बहुत सारे लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, अभी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, बट ये रॉन्ग है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सपोज आपका जो ट्रांसपोर्टर है उनके पास मोर देन 10 से ज़्यादा उनके पास व्हीकल है, तो उस केस पे आपको टीडीएस कट करना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कैसे पता चलेगा ये उनके पास ट्रांसपोर्टर के पास 10 व्हीकल है क्या नहीं? आप उनके पास से एक डिक्लेरेशन लेना है, आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, उसके लिए आप टीडीएस के लिए लाइबल नहीं है। ये डिक्लेरेशन लेना कंपनी का बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का बहुत सारी कैश में ट्रांजेक्शन, जैसे लोकल ट्रांसपोर्टर रहता है तो उन्होंने बिल नहीं देता है, तो उस केस पे हर एक एक्सपेंसेस के लिए आपको तो बिल रखना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टर तो आपको बिल देता नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको उनका नाम से एक लेटरहेड जैसे बना के उनका ट्रांसपोर्टर का नेम, कंपनी का है तो कंपनी का नेम, उसका मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर सब डाल के आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का आप खुद भी बना के उनका साइन और रेवेन्यू स्टैम्प से साइन लेके रखना। आपका इन फ्यूचर में कुछ इनकम टैक्स नोटिस आ गया तो आप प्रॉपर वो बिल प्रेजेंट आप कर सकते हो उसमें से। व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो व्हीकल इंश्योरेंस है इसमें भी एक बड़े चैलेंजेस है।
इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस कौन सा है और बिजनेस के लिए कौन सा यूज हुआ है। जैसे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस रहते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस रहता है। तो इस टाइम पे सपोज आपने कंपनी का पार्टनर है, आप कंपनी का डायरेक्टर है, तो आप कंपनी का प्रोपरेटर है, आप बिजनेस के लिए भी व्हीकल यूज कर रहे हैं और आप पर्सनल के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस कैसे आप बाइफर्केशन करना चाहिए। इसमें कभी इनकम टैक्स नोटिस आ गया, वो लोग आपका 1/3 जो भी आपका एक्सपेंसेस रहते हैं वो एक थंब रूल के हिसाब से वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउड करके वो पर्सनल एक्सपेंसेस में बाइफर्केशन करते हैं। पहले ही आप उसको प्रॉपर 1/3 एक्सपेंसेस जो भी आपका व्हीकल इंश्योरेंस रहते हैं, पर्सनल एक्सपेंस जो भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, ये आपने प्रॉपर उसको पर्सनल का बाइफर्केशन करके अपने बुक्स में एंट्री किया, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पेनल्टी इन फ्यूचर में जो भी इनकम टैक्स नोटिस आया वो आप बच सकते हैं। वाटर एक्सपेंसेस इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आप कंपनी में वाटर एक्सपेंसेस होता है तो आपको उधर भी ये करना है कि इन हाउस आप एक्वागार्ड वाटर फिल्टर आप बैठा सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी पानी लेके आ सकते हैं। उसके लिए आप भी उसको कंपैरिजन करके जो भी आपको सेविंग होगा एक्सपेंसेस आप उसको कंपैरिजन करके कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड टीडीएस। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड टीडीएस जो है वो एक्सपेंसेस बोल के ट्रीट नहीं होता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में बताया था, आपका सपोज टीडीएस पे करना है, आपके पास फंड का प्रॉब्लम है, तो आप बैंक से लोन लेके टीडीएस पे करना, जीएसटी पे करना आपको कभी भी आपको अफोर्डेबल होता है। क्यों? क्योंकि उधर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज आपने टीडीएस पे करने के लिए डिले किया, आपको 18% इंटरेस्ट है। सपोज आपने जीएसटी पे करने के लिए लेट किया, उधर 18% इंटरेस्ट होता है। बट वही आप बैंक से लोन लिया, आपको 9% 10% में आपको इंटरेस्ट में आपको लोन मिलता है। उसके लिए आपको आपका फंड फ्लो एनालिसिस करके इफ इट इज रिक्वायर्ड आप लोन लेके टीडीएस इन टाइम पे करना बहुत जरूरी है। टीडीएस का सपोज अपने रिटर्न जो है वो आपने टाइम पे नहीं भरा तो आपको 200 रुपीज पर डे आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। उतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग टीडीएस साल में एक बार भरता है। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। टीडीएस आपको मंथ टू मंथ भरना बहुत जरूरी है। सपोज अभी जुलाई का जो टीडीएस है आपको अगस्त 7 से पहले आपको भरना बहुत जरूरी है। सपोज आप अगस्त 7 की जगह पे आप अगस्त 8 को भी भरा तो आपको 3% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मीन्स आपने एक दिन डिले किया, इवन अगस्त का 1.5, जुलाई का 1.5% एंड अगस्त का 1.5%, मीन्स टोटल 3%। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ इसका 1% का इंटरेस्ट, वन मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज रॉन्ग। प्रोविजन में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सपोज आपने 1 डे डिले किया फ्रॉम द डेट ऑफ एंड डिडक्टेड दैट मंथ आल्सो कंसिडर फॉर इंटरेस्ट। मीन्स इस महीने का जुलाई का भी आपको 1.5% और अगस्त का भी 1.5%, मीन्स 3% 1 डे डिले किया उसके लिए आपको टीडीएस का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। उतना ही नहीं है, आपने सपोज 1 साल तक टीडीएस भरा ही नहीं है, डायरेक्ट आपने जब आपका ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना रहते वो रिटर्न फाइल करने से पहले बहुत सारे लोग टीडीएस भरता है। अभी उधर रूल्स है, एक्चुअली अभी वो एक्टिव नहीं है, अभी फ्यूचर में वो एक्टिव हो सकता है। तो वो लोग आपको प्रोसिक्यूशन का नोटिस भी बहुत सारे लोगों को दिया भी हुआ है, बट इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है अभी ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजंस। सपोज आपने 1 साल तक आपने टीडीएस नहीं भरा, आपको प्रोसिक्यूशन का नोटिस भी डिपार्टमेंट इशू कर सकता है। व्हीकल लोन इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग व्हीकल, जब आप कंपनी का व्हीकल आप लेने के लिए जाएंगे कंपनी यूज के लिए भी, बहुत सारे लोग सपोज पार्टनर से डायरेक्ट रहे उनका नाम से आप व्हीकल परचेज होता है। क्योंकि आप सपोज कंपनी के नाम पे लिया तो आपको 3 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे लोग पार्टनर के नाम पे, डायरेक्टर के नाम से लेता है। बट आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है और आपको इंटरेस्ट क्लेम करना है, तो जो भी उसका मार्जिन मनी पे करना है, उसका जो ईएमआई पे करना है, आप कंपनी के अकाउंट से पे करने से ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने पार्टनर का और डायरेक्टर का अपने इंडिविजुअल अकाउंट से आपने ईएमआई भरा, सपोज आपने उसका मार्जिन मनी भरा, तो आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आपको ध्यान रखना है ईएमआई और जो मार्जिन मनी है आपको कंपनी के अकाउंट से ही पे करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट्स भी है इनकम टैक्स का। बहुत सारे लोग पर्सनल केस में किया, उनको अलाउड नहीं होता है। जब आपको कंपनी से नाम से आप जब ईएमआई पे करेंगे और कंपनी के नाम से जब आप मार्जिन मनी भरेंगे तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और इंटरेस्ट जो है, जो बैंक इंटरेस्ट आप लोन से जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं।
साइट एक्सपेंसेस ऑल्सो, ये ज़्यादा से साइट एक्सपेंसेस तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ज़्यादा ये अप्लीकेबल होता है। इसमें भी ज़्यादा तरफ से मैनिपुलेशन होने का चांसेस होता है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहते। जैसे आप कुछ फैक्ट्री शेड बना रहे हैं इन फ्यूचर, आप कंपनी एक्सपांशन के लिए, उधर भी आपको साइट एक्सपेंसेस में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। डोनेशंस, डोनेशन, आप सपोज आप कोई ट्रस्ट के लिए आपने डोनेशन किया, तो सपोज वो एटीजी में रजिस्ट्रेशन से है क्या नहीं, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कोई मंदिर को किधर भी आप डोनेशन देंगे तो आप बताएंगे रिटर्न भरते टाइम में मैंने डोनेशन दिया, मेरे को डिडक्शंस लेना है। डोनेशन देने से पहले आपको ये चेक करना है जो भी ट्रस्ट है वो ईटीजी में रजिस्ट्रेशन है क्या, 12A में रजिस्ट्रेशन है क्या, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। एटीजी में रजिस्ट्रेशन में रहा तो आप डोनेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट आप जब डोनेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको कंपलसरी वो आरटीजीएस नहीं तो एनईएफटी आपको करना बहुत ज़रूरी है। पहले कैसे आप कैश में भी डोनेशन दिया तो भी आपको बेनिफिट मिलता था एटीजी का डिडक्शन, अभी आपको वो नहीं मिलने वाला है। आपको कंपलसरी आरटीजीएस नहीं तो एनईएफटी नहीं तो ट्रांसफर आप करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आप रिसीट लेंगे डोनेशन का, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है उसका पैन नंबर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब आप रिटर्न भरेंगे, जब आप एटीजी का क्लेम करेंगे, वो आपको उधर उनका ट्रस्ट का पैन डालना बहुत ज़रूरी है। अभी न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से आपको ये कुछ करना जरूरी नहीं है। ये ट्रस्ट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो, जैसे आप अभी टीडीएस रिटर्न भरते हैं, ऐसे जो भी आपने डोनर है उनका सब डिटेल उसका साइट पे अपलोड करना चाहिए। वो ऑटो प्रीफिल ऑटोमेटिकली वो आपका एटीजी में डिडक्शंस में आ जाएगा इफ दे आर एलिजिबल। ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये भी थोड़ा दिन के आ सकते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है, फॉरेन एक्सचेंज मीन सपोज आपने कुछ मशीनरी बुक किया आउट ऑफ कंट्री, जो भी डॉलर में वेरिएशंस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसका भी इफेक्ट आपको कंसर्न असेट्स को, सपोज आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मटेरियल आपने किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट देना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है इट्स एजुकेटेड टर्नओवर एंड ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत सारे लोगों को बिजनेस बिकॉज दे आर नॉन फाइनेंशियल पीपल, सो उनको पता नहीं रहता, दे आर वो टोटली टेक्निकल्स। आप मेरा टर्नओवर किधर तो किधर देखना है सर, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको जब टर्नओवर देखना है, आपको कुछ ग्रॉस प्रॉफिट देखना है, तो आपको कंपलसरी ट्रेडिंग अकाउंट देखना है। आपको नेट प्रॉफिट देखना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है। इससे अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट थर्सडे वील स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। Each and every part of balance sheet will go in details. If you have any queries related to share trading and this balance sheet, you raise your hand, I will unmute you and you can ask the question. You can, otherwise you can type in question and answer chat box. We'll take the if you have any queries, you can also post in our groups. We are open up to 9 o'clock for question, any your queries and any other question answer. Just anyone have any queries, you can type in question answer, we'll give the answer. We have another 2 minutes. We have any queries, you can ask the queries, or we'll ask the question in our groups, we'll give the answer. Thank you for joining all. Thank you Kote sir, thank you Anjali madam, thank you all participants. And every Thursday we are taking these sessions, half an hour for share trading and half an hour for our book reading. And it's very useful sessions. Share in your friend group and your colleagues, and share the more